Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 17 from unit 3, that is programming fundamentals, and the topic we're going to cover in this video lecture is about conditional statements, and this topic is on page number 110 of your textbook. So let's get started. Before jumping into the detail about conditional statements, let's talk about and let's consider few interesting examples from our daily life routine which will help us a lot in understanding the concept of conditional statements. So very first one example, or you can say that very first one case or scenario is wake up alarm. Wake up alarm we do have two conditions. Very first one is alarm rings and the second one is alarm not rings. So if alarm rings, yes, if alarm rings, then what's the action one has to do? It's basically the wake up. अगर alarm if alarm rings, अगर alarm activate होता है तो simply क्या करें? Just wake up and leave your bed. The second condition is, the second scenario is, for example, no, alarm not rings. अगर alarm activate नहीं होता तो आपने simply क्या करना है? Just keep enjoying your bedtime and continue sleeping. ओके सो इसमें सिंपल सी बात ये है कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है देन देर इज़ अ सर्टन एक्शन विच यू हैव टू टेक एंड एल्स you have to take another action. Okay, very simple. Moving to the next example, that's about charging your cell phone. So the very simple condition is, for example, yes, if the battery is low, then what would be the action one has to take? That's very simple. Just charge your cell phone. And what's the other scenario? That, for example, if the battery is not low, so simply keep using your cell phone and there's no need to charge your cell phone. That's very simple. Okay, इसका मतलब ये है कि अगर if की condition जो है वो true होती है, उस केस में हमें एक particular action लेना है, और else के केस में we have to take other action. Okay, moving next to the third example, we do have user login authentication. अब इसमें ये कि if the correct credentials are there, अगर आप correct credentials provide करते हैं, correct credentials का मतलब ये कि correct username and correct password, then if this condition returns true, then simply action आपको क्या लेना है कि successfully logged in. हमें एक्शन नहीं लेना कि बेसिकली जो भी सिस्टम होगा वो एक्शन ये लेगा कि यूज़र का जो भी अकाउंट होगा सिंपली लॉग इन हो जाएगा. ठीक है, और द ऑपोजिट केस इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला सिनेरियो नहीं होता, अगर करेक्ट क्रीडेंशियल्स नहीं हैं, फॉर एग्जांपल रॉन्ग पासवर्ड है या रॉन्ग यूज़र नेम है, तो उस केस में क्या होगा? स्टे लॉग्ड आउट. तो आप चाहे इंस्टाग्राम का पेज है या फेसबुक का पेज है या कोई और लॉगिन पेज है, तो द यूज़र विल स्टे logged out. So this was a very simple example. Moving to the next example, that's about I think fire alarm. Okay, the fire alarm example is here we do have three parameters. Not three parameters, you can say that we do have three conditions. For example, if the smoke exists, then what should do? Raise the alarm. The second one is if the fire exists, then again raise the alarm, and else no fire alarm. अगर ये दोनों केसेस ही नहीं है, ना तो स्मोक एग्जिस्ट कर रही है ना ही फायर है, फिर क्या है? देयर वुड बी नो फायर अलार्म. ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो एक सर्टन एक्शन जो है, ये सर्टन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं. अनदर इफ़, अच्छा अब ये है कि किसी एक सिनेरियो में यू डू हैव मल्टीपल इफ़. ठीक है, और जब आपके पास मल्टीपल इफ़ आते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वन इफ़ है, सेकेंड वन अगैन इफ़, एंड द लास्ट वन इज़ एल्स. अब इस केस में ऐसे नहीं होता. इस केस में टेक्निकली कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि देयर कुड बी द मल्टीपल इफ़. ठीक है, लेकिन अगर आपका एल्स आ रहा है तो जो दरमियान वाला इफ़ होता है वो इफ़ नहीं होता, वो इफ़ एल्स होता है. ठीक है, फर्स्ट वन इफ़, लास्ट वन एल्स, और जो मिडल वाले इफ़ होते हैं वो इफ़ एल्स होते हैं.
इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन आर कमिंग स्लाइड्स एज वेल. ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द सिंटेक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट. अब यहाँ पे ये है कि इफ़ और इफ़ के बाद ब्रैकेट्स हैं. ब्रैकेट के अंदर ब्लू में देखें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि दैट्स द कंडीशन आर रिलेशनल एक्सप्रेशन. यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन होगी, अब उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन भी यूज़ हो सकता है, वहाँ पे लॉजिकल जो है एक्सप्रेशन वो भी यूज़ हो सकता है. अब ये है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन हो या रिलेशनल एक्सप्रेशन हो, दोनों की रिटर्न टाइप या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है. अब इफ़ की रिटर्न टाइप, इफ़ में जो कंडीशन है इसकी जो रिटर्न टाइप अगर ट्रू होगी तो ये आएगा इफ़ की बॉडी के अंदर, एंड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी दे विल गेट एग्जीक्यूटेड. जो भी पर्टिकुलर एक्शन लेना होगा वो उस पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा. अच्छा, इसका सिंटेक्स देख लें. इफ़ बेसिकली कीवर्ड है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, एंड देन आपने रेड में देखा है कि रेड में मैंने कॉलन शो किया है और उसके बाद आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है. तो बहुत सिंपल है. पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स इज़ वेरी सिंपल. ओके, मूविंग नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अनदर इफ़, तो उसको बेसिकली हम किस तरह से हैंडल करेंगे. अच्छा, उसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे. द फर्स्ट इफ़ है आपकी एग्जैक्टली सही कॉपी पेस्ट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से, बस आपका कीवर्ड चेंज हो जाएगा. दैट इज़ एल्स इफ़. एल्स इफ़ में फुल नहीं लिखेंगे, आप जस्ट कीवर्ड मेंशन करेंगे ELIF. दैट्स इट. ओके, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज इफ, the next one. अच्छा, ये else if तब होगा when there would be three options. ठीक है. अच्छा, अब इसमें होता है ये कि फर्स्ट वन हमेशा इफ़ होता है, लास्ट वन आपका हमेशा एल्स होता है, और जो मिडल वन है दैट वुड बी एल्स इफ़. ठीक है. इसी तरह अगर हमारे पास अगर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, 4 केसेस आ जाते हैं, उस केस में द फर्स्ट वन वुड बी इफ़, द लास्ट वन वुड बी एल्स, और जो सेंटर वाले 2 इफ़ होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, एल्स इफ़. तो एल्स इफ़ हमेशा जो है वो दरमियान में आता है, एंड इट्स बेसिकली सैंडविच्ड बिटवीन अपर इफ़ एंड द लोअर एल्स. सो इसका सिंटेक्स किस तरह से है कि इफ़ देयर इज़ अ कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. एल्स इफ़ अनदर कंडीशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एंड देन एल्स, और उस एल्स के corresponding जो है वी विल बी हैविंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. Okay, so this is all about from today's lecture. In case of any question, you guys feel free to ask your questions and queries in the comment section, and in case of contact, you guys may contact me through my WhatsApp number, through the email address I have mentioned. So now let's move to the towards the coding demo. We will be having the coding session, the programming practice about